Hey all, hope you're all fine. Well, today we are going to do something very interesting. We are going to do articles. I know you have a lot of questions and I am going to answer all of these with this video. मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी का भी इस्तेमाल करूं ताकि हर किसी को समझ में आए. तो आज हम समझने वाले हैं कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता है. So today we are going to understand and learn about the articles, where to use the articles, where not to use the articles, and it is going to be a detailed video. So all these students who are preparing for their exams, who have this in their syllabus, may go ahead and watch this video. This is going to be of great use. A quick question for you all. How many articles do we have? And can you name them? There are 3 articles, right? A, an, and the. Now these are divided into 2 categories. One is the definite article, which is the, and the other category is the indefinite articles, okay, which are a as well as an. So 3 तरह के articles होते हैं, a and the है definite और a और an use करते हैं singular indefinite के तौर पे, मतलब वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, कोई निर्दिष्ट चीज़ नहीं है. Now this is very interesting, right? Articles are used before nouns and they work as adjectives to the nouns, right? Like a, an, they indicate the singular number of a noun and the indicates something very specific and this can be used for plural as well. तो ये a and the जो है ये विशेषण की तरह यूज़ होता है हमारे संज्ञा के लिए, ठीक है. और द को हम यूज़ कर सकते हैं प्लूरल के लिए भी. अच्छा, कभी ऐसा देखा है कि हम एडजेक्टिव से पहले यूज़ कर रहे हैं अ या द या एन ऑनेस्ट मैन, अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग और अ ब्यूटिफुल गर्ल और एन एक्सीलेंट वर्क. ये सब जो है ये एक्चुअली यूज़ हो रहा है noun के लिए ही. Let's see some examples here. An old man. Here if you see old is an adjective and man is a noun. तो हम use कर रहे हैं an because एक ही man के बारे में बात कर रहे हैं. An क्यों use कर रहे हैं? क्योंकि old में जो first sound है वो है एक vowel sound, right? इसीलिए an old man. उसी तरह से a good student. Because we are only talking about one student, and because the adjective, the beginning letter of the adjective is g sound, which is a consonant sound, that is why we are using a for consonant. Similarly, for the dark cloud, the is used for a specific cloud, okay? So you can quickly check the image and try and understand and relate to what I just said. Man is a singular number noun and old starts with the letter O, which is a vowel sound as well. So that is why we are going to use an. Now again, there is something very interesting for you all to know. As we all know, there are 26 letters in English alphabet. Just to let you know and remind you that there's just one alphabet in English language, okay? And talking about the sounds, there are altogether 43 to 44 sounds. Vowel sounds are, 19 or 20. We need to calculate that one more time because some people say there are 19, some people say there are 20. So we'll get to that in details. And consonant sounds are 24. So I'll make a separate video on sounds altogether so that we all get to know about the sounds in details, okay? अच्छा, अब मैं एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ जो हर किसी को याद रखने में भी आसान होगा और हम कभी भी ए और एन में कंफ्यूज होकर गलती नहीं करेंगे, ठीक है. सो ट्रिक ये है कि आपको हिंदी के स्वर और व्यंजन तो पता है, तो कभी भी अगर कन्फ्यूजन हो तो याद रखिए कि स्वर जो है वो है वाल्स, ओके. स्वर जो है वो है वाल साउंड्स और व्यंजन जो है वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स. तो ये अगर दिमाग में हमेशा रहेगा तो हमें सिंगुलर नंबर देखना है नाउन का है या नहीं और साउंड चेक करना है स्वर या व्यंजन से, ओके. तो इसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं ही नहीं अगर आप ये दिमाग में रख के करेंगे तो. सो यूज़ ऑफ ए आपको पता ही है. वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑलवेज विल हैव
a as a prefix and these words can be noun or adjectives. ठीक है, adjectives को देख के भी हम यूज़ करते हैं a या फिर an. ठीक है, so keep that in mind as well. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, अ गर्ल इज़ डांसिंग. गर्ल एक नाउन है तो हमने उसी हिसाब से देख के अ सिलेक्ट किया क्योंकि ग साउंड आ रहा है. ग क्या है, व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ गर्ल इसीलिए होगा और क्योंकि गर्ल सिंगुलर नंबर है. और सेकंड एग्जांपल में अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़ डांसिंग, यहाँ पे ब्यूटीफुल ऐड हो गया, ये एक एडजेक्टिव है. सो यहाँ पे हम अ यूज़ इसलिए करें क्योंकि ब्यूटीफुल में ब जो साउंड है वो है अगेन व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड. इस नोट में भी यही है जो अभी मैंने बोला है. इन केस ऑफ एडजेक्टिव्स द आर्टिकल्स विल बी एडेड बेस्ड ऑन द कॉन्सोनेंट्स, based on the nouns number, singular or plural. However, also to keep in mind the first sound of the adjective. Now a quick quiz time. Rajiv is wearing dash uniform. Will you put a or an? Think and do it. Now let's see what do we have to put. So uniform, the sound is y sound. Remember the Vyanjan y sound? Yes, and that is why we are going to put a before uniform. Okay? Now again a quick question just for you to understand whether you have got it correctly or not. Okay? Rajiv is wearing dash ironed uniform. Now here ironed is an adjective. So tell me what are you going to put here? The correct answer is an. Use of an. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, द वर्ड्स बिगिनिंग विद द वाल साउंड्स, जो शुरू होता है वाल साउंड से, स्वर से हिंदी के, वो हमेशा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे. उससे पहले हम एन लगाएंगे अगर वो नाउन है या फिर एडजेक्टिव है. सो लेट्स चेक सम एग्जांपल्स. एन एंशिएंट बिल्डिंग गॉट डिमोलिश्ड. एन इसलिए यूज़ होगा क्योंकि एंशिएंट में ए जो है वो है वाल साउंड और लेटर दोनों ही हैं और ये एक एडजेक्टिव है. और बिल्डिंग जो है वो सिंगुलर, एक ही बिल्डिंग के बारे में बात करें. नेक्स्ट एग्जांपल, एयर कंडीशन जो है वो है नाउन, उसका साउंड भी है वाल साउंड, तो एन यूज़ होगा. तो अब हम द कहाँ पे यूज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. द वर्ड्स विच आर यूनिवर्सली नोन, okay, or some facts or some specific things that we have already spoken about, ठीक है, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं. अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं. द सन इज़ अ बॉल ऑफ फायर. यहाँ पे हमें सन के बारे में पता ही है, सबको पता है, तो द का इस्तेमाल सन से पहले होगा. अ सन नहीं हो सकता क्योंकि हम बहुत सारों में से एक सन के बारे में नहीं बात कर रहे, हमारे पास सन एक ही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं. द बॉय हु इज़ वेयरिंग जीन्स. सो द बॉय, यहाँ हम उस स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जीन्स पहना हुआ है, इसीलिए द का इस्तेमाल होगा. I am sitting near the window of my class. So हम स्पेसिफिक विंडो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्लास में है, तो इसीलिए द का यूज़ होगा. Now let's talk about the exceptions of articles. अच्छा, यहाँ पे omission of articles के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ पे ज़रूरी है लगाना, जहाँ पे नहीं ज़रूरी है लगाना. उसमें 8 rules हैं. There are 8 rules to remember. So let's go ahead and discuss all those. नेम्स ऑफ कंट्रीज़ में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे कि कनाडा, हम द कनाडा नहीं बोलेंगे, द इंडिया नहीं बोलेंगे, द नेपाल नहीं बोलेंगे, द श्रीलंका नहीं बोलेंगे, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इफ़ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन अ कंट्री, जैसे कि अमेरिका में है ना, बहुत सारे स्टेट्स मिलके अमेरिका बना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, ठीक है. सो वहाँ पे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा. मील्स के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं हम जब जनरल मील के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू हैव ब्रेकफास्ट, आई डोंट वांट टू हैव अ ब्रेकफास्ट नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो जानना ज़रूरी है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर के बारे में बात करें, जैसे कि हमने लंच खाया, हाँ, सो हम उसके बारे में अगर बात करें तो फिर हम बोलेंगे कि द लंच वॉज गुड, ठीक है, द लंच, वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा. स्पेसिफिक लंच के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए. अच्छा, जब भी हम जॉब्स के बारे में बात करते हैं, रूल नंबर 3 ये है कि जॉब्स के साथ हमेशा अ या एन का यूज़ होगा, द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी a doctor, I want to be an MBA, I want to be an engineer, ठीक है. हम I want to be the engineer कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है. अ या an का यूज़ होगा जॉब्स के साथ.
प्रॉपर नाउन्स के साथ हमेशा याद रखना कोई आर्टिकल होगा ही नहीं। हम किसी भी नाम यूज़ करते किसी का भी नाम यूज़ करते हैं, डेविड हो, रीना हो, रेशमी हो, एमा हो, रॉबर्ट हो, राहुल हो, हम कभी भी राहुल द राहुल या फिर एन एमा, एन एलिना नहीं बोलेंगे, राइट। अच्छा, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज भी तो एक नाम ही है ना, नेम ऑफ द लैंग्वेज है, राइट। तो फिर उसके साथ हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे आर्टिकल। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी हो, हिब्रू। अच्छा, जो ये सिक्स पॉइंट है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम कभी भी अ या एन का इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए नहीं करेंगे जो हमें पता है कि सिर्फ एक ही है। ठीक है, जैसे कि सन, स्काई, मून, इंटरनेट, हम एन इंटरनेट नहीं बोलते हैं, द इंटरनेट बोलते हैं, राइट। द इंटरनेट इज़ गॉन, राइट। सो द इलेक्ट्रिसिटी इज़ गॉन, एन इलेक्ट्रिसिटी इज़ गॉन कभी नहीं होगा। अच्छा, सेवेंथ पॉइंट जो है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते, लाइक हेयर, राइस, मिल्क, ब्रेड, राइट, कॉफ़ी। सो वी कैन नॉट काउंट ऑल दीज। सो इसके साथ कभी भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, ए एन और एन यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन द यूज़ कर सकते हैं जब हम स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि द राइस इज़ बॉइलिंग, ओके, द कॉफ़ी इज़ गेटिंग कोल्ड। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इंटैंजिबल होता है। ठीक है, इंटैंजिबल मतलब जिसे हम छू ना सके, टैंजिबल मतलब जिसे हम छू सकें। ठीक है, सो इसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये फील किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। तो हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन द का इस्तेमाल इसमें होगा स्पेसिफिक केसेस में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल्स। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। दोज हु वॉच्ड इट, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं ग्रामर और जिन्हें ज़रूरत है। थैंक यू वंस अगेन।